how to use formula to determine position of the image under different conditions, right? Size of the image, real or virtual nature, behind or in front of, everything you can determine using two formulas. One is mirror formula. What does it state? It says 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. F is focal length. I hope you remember focal length is what? Distance of focus from what? Center of curvature. No, from pole. See, ऐसा कुछ होता था. This is center of curvature. This is focus. This length is focal length. U is what? U is distance of object from pole. Pole is basically geometric center. I hope you remember this. Now, V is what? Distance of image from pole. Right? Sign convention क्या था? What was sign convention? Sign convention था, this is measured positive, this is negative, this is positive, this is negative. Towards right is positive, towards left is negative, upwards is positive, and downwards is negative. Clear? Hello? Yes, sir. Okay, good. Now see. Magnification एक term है. Magnification gives us an idea of how large image is as compared to object. So magnification M is minus V by U, where U is object distance, V is image distance, M stands for magnification. M की value अगर 1 से छोटी है तो diminished होगा, अगर 1 से बड़ी है तो enlarged होगा, अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड और रियल होगा, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा. बस इतना याद कर लो आप. आपको वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, राइट? और इस पे तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत सारे, राइट? आरी बात समझ में? Yes, sir. इसको कैसे यूज करना? लेट्स लर्न हाउ टू यूज दिस. ओके, सो लेट मी टेक अ केस. Let us take a case where क्वेश्चन जैसा बना देता हूं मैं. Object is placed within focus. Sign, describe image. Complete description देना. Describe image. When I say describe image, means what? Position, real, virtual, erect, inverted, enlarged, diminished, everything you have to say. So object is placed within focus. Focus के अंदर, यहाँ कहीं पर रखा हुआ है, within focus, right? And एक और चीज बता दूं आपको, ये मिरर जो है कॉन्केव मिरर, ठीक है? क्लियर है? For concave mirror, object is placed within focal length. That means between focus and pole. You have to describe image. ठीक है? क्लियर हो गया? आ गया समझ में क्वेश्चन? हेलो? Yes, sir. हाँ. Now you choose a focal length. आप अपनी मर्जी से कुछ भी मुझे बता दो. सर मेरा 50 सेंटीमीटर. चलो 50 सेंटीमीटर ले लिया मैंने. Now question is, this should be positive or negative? सर नेगेटिव ले लीजिए.
ले नहीं लीजिए, लेते हैं। क्यों? इस टाइप जब फिगर बनाते हैं तो इंसिडेंट रे इधर से बनाते हैं, तो ये पोल से मेजर करोगे आप ये डिस्टेंस, तो किधर आया? लेफ्ट साइड ना, सारे मेजरमेंट पोल से करना है, तो लेफ्ट साइड में रख रहे हो तो -50 हो, राइट? सर क्लियर? सर कॉन्वेक्स में सर फिर उसके बाद प्लस में होता है फोकस। कॉन्वेक्स में प्लस होता है बिकॉज उसका फोकस इधर होता है, ये सही, राइट? तो कॉनकेव का नेगेटिव है, कॉन्वेक्स का प्लस, ठीक? तो F इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। गुड। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खुद से चूज करो, आप बताओ कितना लो। सर जस्ट सर 10-15 सेंटीमीटर दोनों में से ले लीजिए। 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव? सर पॉजिटिव। क्यों? सर मैं नेगेटिव ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव ना, सर ऑब्जेक्ट तो वो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव सर निकलता ही है मुंह से। नाउ लेट्स डिटरमाइन V एंड M, ये दोनों निकाल के मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा इमेज का, राइट? सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U, तो U की जगह -10 हो गया, इज इक्वल टू 1/F, F हो गया -50, राइट? टेक -1/10 on that side. -1/10 the +1/10 का 1/V 1/10 minus 1/50, LCM 5/50 minus 100, 4/50, so V is equal to 50/4, 12.5 centimeter plus, तो plus 12.5 सेंटीमीटर, राइट? ये हो गया क्या? V का वैल्यू। Now let us measure magnification. So magnification is minus V. V is 12.5 upon U. U is -10. Minus minus plus 1.25, that is 5/4. ठीक है? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Let us find the position. अब इसके हेल्प से सिर्फ ये दो वैल्यूज देखनी है मुझे, V और M, इसके बाद मैं सब बता दूं। पोजीशन बताओ, कहां पे बनी इमेज? इमेज की पोजीशन क्या है? V का वैल्यू कितना है? What is value of V? वैल्यू ऑफ V देखो सामने दिया हुआ है, हेलो? यस सर। वैल्यू ऑफ V बताओ ना कितना है, दिया ना सामने। सर वैल्यू ऑफ V होगा लिखा है, वो भी नहीं बोल रहे आप लोग। 12.5 लिखा मैंने कैलकुलेटर, वो भी नहीं बोल रहे, कैसा चलेगा यार? हाँ, तो प्लस है या माइनस? प्लस है या माइनस? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब किधर होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट। राइट। मिरर के पीछे चला गया, बिहाइंड द मिरर। 12.5 मतलब ये 50, इधर 50 पे था, तो ये 12.5, थोड़ा सा डिस्टेंस, राइट? तो V का वैल्यू हो गया 12.5 सेंटीमीटर, दैट मींस पोजीशन ऑफ द इमेजेस बिहाइंड द मिरर, 12.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है? चलो अभी बताओ, वर्चुअल है या रियल है? ये कहां से दिखेगा आपका? नेचर क्या है, वर्चुअल है रियल है? वर्चुअल है, मिरर के पीछे बनता है, तो वर्चुअल। नहीं भी दिखे तो ये प्लस है, प्लस का मतलब वर्चुअल, सो इट इज वर्चुअल। चलो अब बताओ, डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है? डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड? सर डिमिनिश्ड।
enlarged है, m का वैल्यू 5/4 है, 1 से तो बड़ा है ना, 1.25, तो इमेज इज enlarged. ऐसा मत करो, समझा? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दे शुरुआत से। असल में सर मेरा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने अभी जस्ट स्विच की सिम, आइडिया को जियो किया। Okay. तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f, और magnification is minus v/u. Using these two formulas, create a situation and calculate v and m. इनकी वैल्यूज देख के आप सब बता सकते हो। v का वैल्यू आई गॉट इज प्लस 12.5 सेंटीमीटर, तो मैंने बोला इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, व्हाई? बिकॉज इट इज पॉजिटिव, तो प्लस एंड 12.5, यहाँ से 12.5, ठीक है। वर्चुअल और रियल? वर्चुअल, व्हाई? हो गया m का वैल्यू प्लस सर, आ गया, या बिहाइंड द मिरर है तो हाँ, तो वो भी काफी समझने के लिए ठीक है। enlarged और diminished, मैग्निफिकेशन क्या दिखा रहा है? मैग्निफिकेशन मतलब हाउ enlarged images as compared to the object, तो मैग्निफिकेशन 1.25 है, मतलब ऑब्जेक्ट से 1.25 टाइम्स बड़ा इमेज है, सो इमेज इज enlarged, yes say. ओके सर, समझ आ गया। Now, question is erect or inverted. So positive means erect. M is positive, therefore erect, upright आएगा, right? If M was negative, then it would be inverted. Image would be inverted. That's it. So ये फॉर्मूला देख के आपको वो टेबल याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट वन फॉर्मूला, ठीक है। चलो कोई और सिचुएशन खुद से क्रिएट करके बताओ, कहाँ रख दूं? टेक अनदर क्वेश्चन, बोलो कहाँ रखूं ऑब्जेक्ट? कुलदीप, क्रिएट अ सिचुएशन, मतलब बताओ कहाँ पे रखूं? सर किसको? सर ऑब्जेक्ट को रखना है? ऑब्जेक्ट रखेंगे ना बेटा, कहाँ रखूं? ओके सर, 6 तो लोकेशन। सर ऑब्जेक्ट को रखिए 50 सेंटीमीटर दूर। मतलब वो बताओ 6 केस है ना, मतलब इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस, सेंटर, एट सेंटर, सर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अच्छा, सो फोकस कितना ले लूं? यू कैन चूज एनीथिंग बाय योरसेल्फ। सर फोकस ले लीजिए सर, लगभग कुछ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव लेंगे, कॉनकेव की बात हो रही है, ओके ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ कितना ले लूं? कुछ ऐसी वैल्यू बोलना जो सी और इंफिनिटी के बीच में आए। सी और इंफिनिटी सर कुछ 200 मीटर दूर। चलो 200 ले लिया, ज्यादा से बोल दिया 200 सेंटीमीटर ले लिया, कोई नहीं 200 सेंटीमीटर ले लिया, 20 सेंटीमीटर या माइनस 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ढूंढेंगे v एंड m, ये दोनों मिल गया तो अपना काम। चल लेट्स स्टार्ट। सो 1/v प्लस 1/u, आ रहा ना सबको समझ में? नहीं आ रहा तो प्लीज डिस्कस करो, आई विल एक्सप्लेन। 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू माइनस 200 is equal to 1/f, to minus 1/20. So 1/v is equal to minus 1/20 plus 1/200. So this is minus 10/200 minus 9/200. So v is equal to minus 22.2. So v का वैल्यू आ गया minus 22.2. m is what? Minus v by u. Minus of minus 200 by 9 upon u is minus 20. So minus 200, minus 200, minus 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 1/9. चल, तो v का वैल्यू आ गया एंड m का वैल्यू आ गया, लिखना शुरू करते हैं। ओके, इमेज का पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज? सर पोजीशन ऑफ इमेज होगी -1/9, तो इमेज की पोजीशन होगी सर रियल, मतलब सॉरी पोजीशन तो बिटवीन सी एंड इन इंफिनिटी फ्रंट था। ऑफ, हाँ तो f था 20 पे, एक तो लेफ्ट साइड आ रही, देखो माइनस है मतलब लेफ्ट साइड है, और फोकस से c के बीच में है, बिटवीन c एंड f,
राइट? नहीं, f कहाँ पे है? f है -20 पे और c है -40 पे, तो -20 और -40 के बीच में है. So position is between c and f, right? Okay. Nature. What is nature of the image? Real और virtual कैसा है? What is nature of image? सर नेचर ऑफ इमेज होगी रियल. Real. Real and What made error. you say that? सर क्या मैग्निफिकेशन सर माइनस में आया है. सॉरी v जो है वो माइनस में है. दोनों भी चलेगा. v माइनस है मतलब इन फ्रंट ऑफ बना है मिरर, Okay, तो sir. रियल ही आने वाला है. और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो उससे भी रियल है, तो नेचर इज रियल. एनलार्ज और डिमिनिश्ड साइज क्या बोलोगे आप? Enlarge. सर साइज होगा सर डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड. प्रिया ये देखो ना, 1/9 और 1 सर से छोटा हो गया ना. Okay, हाँ sir. तो ये हो गया डिमिनिश्ड, छोटा हो गया. 1/9 साइज हो गया, राइट? साइज इज 1/9 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर इन्वर्जन का क्या है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? हेलो, इट्स इरेक्ट और इन्वर्टेड? So inverted. इन्वर्टेड है. मैग्निफिकेशन माइनस. ओके सर, मैं भूल गया था m सर. जो है वो नेगेटिव. कोई बात नहीं. तो ये इन्वर्टेड हो. ओके, इज इट क्लियर? तो देखो, Yes. अपनी मर्जी से हम लोग वैल्यूज डाल के निकाल सकते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों याद करूं मैं टेबल, राइट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. सो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है. आपको जैसा भी सिचुएशन दिया होगा वैसा आप क्रिएट करो सिचुएशन. चूज द वैल्यू ऑफ f and v, suitable values of u and f, and find the value of v and m. तो उससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. ओके. ओके सर. एंड मजे की बात है, ऐसे ही फॉर्मूला चारों के लिए. टेबल तो सबकी अलग बनेगी, लेकिन ये फॉर्मूला चारों के लिए ऐसे नहीं. थोड़ा बहुत उन्नीस मतलब सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, विच इज इजी टू रिमेम्बर. तो चलो, ये मेरा पहला पार्ट हो गया. अब फटाफट देख लेते हैं ये मिरर यूज कहाँ होगा. तो कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होगा? तो कॉनकेव मिरर मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ यूज होता है. जहां आपको मैग्निफिकेशन की जरूरत है, जहां आपको एनलार्ज करने की जरूरत है, जहां पे आपको एनलार्ज करना है और जहां पे आपको कन्वर्ज करना है. तो दो चीजों में हम यूज करते हैं इसको. मैं कहाँ कहाँ यूज करेंगे? use wherever we need enlarged image and need to diverge the rays, to converge the rays, right? ऐसी जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं. किसको? concave mirror को. The best example is your मिरर होता है ये शेविंग के लिए यूज करते हैं, शेविंग मिरर, राइट? तो शेविंग मिरर में क्या होता है, मुझे ऐसा देखकर छोटे छोटे बाल भी बड़े दिखने चाहिए, राइट? आई नीड टू सी लार्ज साइज इमेज. तो अगर आप कॉनकेव मिरर लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लेंस में देख रहे हो. बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी सी इफ आई हैव मिरर विथ मी. नहीं है, लेंस है, मिरर नहीं. ओके. सो इसमें इमेज जो होती है वो एनलार्ज होकर दिखाई देती है, राइट? अगर आपके पास कभी स्फेरिकल मिरर मतलब ये कॉनकेव मिरर देखने मिल जाए तो ट्राई टू सी. और दो छोड़ दो, स्पून से देख लो. स्पून का जो इनर सरफेस है ना, उसमें अपना फेस देखने की कोशिश. चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती है, राइट? सो इफ यू हैव मुस्टैच और बियर्ड, यू कैन सी दैट हेयर्स आर एनलार्ज्ड. तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो क्लैरिटी रहती है, राइट? देन
I don't know whether you people have ever visited to a dentist. Dentist uses this mirror. This dentist uses the mirror. Why? To see the cavities. छोटा सा mirror रहता है concave, जैसे अंदर डाल के वो लोग देखते हैं, right? So to see the cavities और कहाँ tooth में problem है वो देखने के लिए they use what concave mirror, right? Then और कहाँ पे देखा हमने? See, I have personally seen in this one. सोलर प्लांट्स में क्या होता है, एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर जैसी चीज होती है, राइट? देयर इज अ कॉनकेव, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज इट इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, बट ठीक है अपने लेवल पे हम लोग मान लेते हैं कॉनकेव। तो ऐसा कॉनकेव रिफ्लेक्टर, तो जो भी लाइट आती है, जो भी लाइट आ रही सन से, वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, राइट? तो सोलर हीटर्स या सोलर पैनल्स, सोलर हीटर या सोलर प्लांट्स, इन सब जगहों में यूज करते हैं किसको? कॉनकेव रिफ्लेक्टर को, राइट? हेडलाइट्स में यूज करते हैं इसको, हेडलाइट्स में यूज करते हैं, हेडलाइट्स, फ्लड लाइट्स, सर्च लाइट्स बोलते हैं ना, हेडलाइट। क्यों? जो मतलब पैरेलल बीम होती है, लॉन्ग बीम होती है ना, उसमें इसको यूज करते हैं। तो कैसा रहता है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, बट वी कैन से टू सम एक्सटेंट इट इज ये क्या बोलते हैं इसको,